back to the series, The Fundamental Unit of a Life. So in part 1, lecture 2, we learned about the different kinds of cell, the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. Even in eukaryotic cell, we learned the differences between a plant cell and the animal cell. So let's revise this quickly and jump into the part 2 of this chapter. So in prokaryotic cell, these are generally small. They have a poorly developed nucleus, and so this is not called a nucleus but a nucleoid. And chromosome इसमें एक ही होता है. Nucleolus, membrane bound cell organelles, centroid, these are not present in prokaryotic cell. The organisms in which we find the prokaryotic cell are bacteria or the blue-green algae. And the cell division process which it uses is a binary fission or the budding. Whereas in eukaryotic cells, so these are generally large. They have a well-defined nucleus which has a nuclear membrane around it. When I talk about the chromosome, so eukaryotic cells have more than one chromosome, unlike the prokaryotic cell. And the nucleolus, membrane-bound cell organelles, centroid, these all are present in a eukaryotic cell. The organisms in which the eukaryotic cells are present are fungi, plant, animal, and many more. The cell division process which it uses is a mitotic or meiotic cell division. Okay, so this was the differences between a prokaryotic cell and the eukaryotic cell. Now let's come to a plant cell and the animal cell. So here we learned about the 5 differences. So when I talk about a plant cell, so they are comparatively larger. They have a cell wall present in it, so it's a double protected, it's rigid. Then इसका जो center space है ये large vacuoles से occupied है. इसमें chloroplast या plastid present होता है which is responsible for the photosynthesis. And the nucleus lie in the site, like वो center पे नहीं होता. क्यों? क्योंकि center पे तो large vacuole है. Whereas in animal cell, they are generally smaller in size. Cell wall present नहीं होता है. The outermost covering we have is a plasma membrane or the cell membrane. And the animal cell have small vacuole. Plant cell में एक बड़ा vacuole होता है. Animal cell में छोटे छोटे vacuoles होते हैं. Animal cell में plastid obviously नहीं होता. We can't make our own food. And the nucleus lie in the center. Like here you can see it. Okay. So this slide is an extra slide for an extra information. So many people have the confusion between a protoplasm and the cytoplasm. Well, protoplasm is also the liquid in a cell, and the cytoplasm, cyto means cell and the plasma means liquid. So cytoplasm also refers to the liquid in a cell. So the only difference it has is the cytoplasm is the liquid, like this peach color hole, and the protoplasm is also the liquid, including the nucleus and the other organelle. So just learn this equation. This shows the relation between a protoplasm and the cytoplasm. So that's all. Let's get started with the part 2 of this chapter. In today's lecture, we are going to learn about what is plasma membrane, what are its functions, how the cell transport, what are different methods like diffusion and osmosis. Even in this osmosis, we have 3 types: hypertonic, hypotonic, and isotonic solution. So let's get started with it. So plasma membrane or the cell membrane, both are the same. So plasma membrane is nothing but it is a thin and a delicate covering of a cell that actually separates the content of a cell from its external environment. Plasma membrane किस चीज का बना हुआ है? वो phospholipids का बना हुआ है. अभी phospholipids क्या होते हैं? जैसे कि फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, which are the nutrients in our body. Similarly, phospholipids are related to the fatty acid chain. I don't think हम इसकी डिटेल में जाना चाहिए, but as of now, you just learn that the plasma membrane is made up of phospholipids. Okay, so let's read this. This is the outermost living, thin and delicate covering of a cell that separates the content of a cell. Plasma membrane is primarily made up of a phospholipid. The presence of lipids and protein provide flexibility,
to the plasma membrane and enable cell to engulf food and other material from the external environment. तो जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ओके, अब इसका एक एग्जांपल दिया है अमीबा. अब अमीबा के बारे में भी ऑल हैव लर्न कि हाउ इट इंगल्व इट्स फूड. वो साइड में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया. ठीक है, स्यूडो मतलब फॉल्स, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी रियल फिंगर्स नहीं होती है. वो बस उस टाइम के लिए बनती है जब वो खाना ग्रैब कर रहा होता है, इनगल्फ कर रहा होता है. ठीक है, तो okay, so amoeba acquire food through this process with the help of a finger-like projection called pseudopodia. What is endocytosis? Endocytosis is a process in which the cell membrane or the plasma membrane engulfs the food. ओके, सो एंडो मतलब अंदर लेना एंड साइटो मतलब सेल. तो सेल के अंदर लेने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस. सो वी लर्न टू थिंग, फॉस्फोलिपिड्स एंड एंडोसाइटोसिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑब्वियसली वो आउटर कवरिंग है, वो अपन के सेल की आउटर कवरिंग है. तो इसका जो मेन फंक्शन जो सभी को समझ आ गया होगा वो क्या होगा? It provides protection against the microbe and foreign substances. Foreign substance का मतलब कि आउटर एनवायरनमेंट के जो सब्सटेंस होते हैं उनसे वो प्रोटेक्ट करता है. जो सेकंड बहुत कॉमन इसका फंक्शन है वो क्या है? इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल. ऑब्वियसली दोनों पॉइंट्स का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बस एक में ये बताया है कि माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है और एक में ये बताया है कि इंटरनल कंटेंट ऑफ अ सेल को प्रोटेक्ट करता है, उसे बांधे रखता है ना. ठीक है, नाउ इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. ऑब्वियसली लाइक जैसे एक पानी है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जब तक कि आप उसे कंटेनर में नहीं रखोगे उसकी एक शेप नहीं होगी. तो ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द शेप ऑफ द सेल. It acts as a mechanical barrier and protect the internal content of the cell. It provides protection against the microbe. And ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अलग अलग सेल्स के फंक्शंस की वजह से मॉडिफाई होता है. फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में वैसे तो मैं आपको बताऊं तो मेम्ब्रेन ऐसा होता है बिल्कुल लाइक बिल्कुल थिन शीट जैसा, लेकिन अपनी लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ऐसा है. ऐसा क्यों है? इसने एक्चुअली सरफेस एरिया बढ़ा दिया है. तो जब वो फूड मॉलिक्यूल इस पे आएगा ना तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो पाएगी और इसी की वजह से जो भी हम खा पाते हैं ना उसको हम प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाते हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं. तो वो है तो मेम्ब्रेन ही, लेकिन वो मॉडिफाई हुई है क्योंकि उसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब करना फूड को और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करना. So microvilli in intestine of human beings for absorption is the example of it कि plasma membrane modify हो जाता है. अब जो सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ये है कि वो सेमी परमिएबल है. परमिएबल मतलब परमिट करना, किसी भी चीज को अंदर बाहर अलाउ करना. सेमी मतलब कुछ ही चीजों को अलाउ करना. तो क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके वजह से काफी प्रॉफिट होता है. लाइक आप सिर्फ फूड ले पाते हो अंदर, बाकी चीजें नहीं. ठीक है, सो इट्स semi permeability enable the cell to maintain the cellular homeostasis. Homeostasis is nothing but an equilibrium state. Okay, amongst all the functions listed above, the transport of the function is the most important function. ये क्योंकि सेमी परमिएबल है तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है, बट कुछ ही चीजों का ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करता है. तो चलो अब उसके दो प्रोसेसेस है, एक है ऑस्मोसिस एंड एक है डिफ्यूजन. दोनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं. इट्स रियली इजी एंड रियली इंटरेस्टिंग एज वेल. So the transportation of a substance across the membrane may take place with the expenditure of an energy or without the expenditure of an energy. इसका मतलब क्या है कि जब ट्रांसपोर्ट हो रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जब चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है तो हो सकता है उसमें एनर्जी लगे. तो जब एनर्जी लगेगी तो हम उस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और हो सकता है उसमें एनर्जी कंज्यूम ना हो तो वैसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन?
डिफ्यूजन इज नथिंग, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था. डिफ्यूजन अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. जहाँ पे किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो वहां से भागेगी कहाँ पे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, विच इज एन ऑब्वियस थिंग, है ना. आप दो कंटेनर लो, ठीक है, और उन दोनों को ज्वाइन कर दो. एक में पानी की मात्रा ज्यादा रखो और दूसरे में कम, तो पानी कहाँ फ्लो करेगा, कम वाले वेसल की तरफ फ्लो करेगा. So that's an example of a diffusion. So the spontaneous movement of a substance, that substance can be a solid, liquid or a gas, from a region of higher concentration to a region of a lower concentration is called a diffusion. अब इसका जो example हम अपनी body से लेंगे वो क्या लेंगे, the diffusion of oxygen and carbon dioxide. अब होता क्या है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो CO2 बाहर जाएगी. सिमिलरली अगर ऑक्सीजन की कमी है अपने सेल में, लाइक उसकी कंसंट्रेशन अगर कम है तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी. तो ऐसे ही होता है, लंग्स वर्क लाइक दिस. ओके, सो इसका एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड. सेलुलर वेस्ट विच नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट accumulates in higher concentration inside the cell than the outside. Due to this difference in the concentration, CO2 moves out of the cell by the process of diffusion. Similarly, the concentration of oxygen is lower inside the cell than the outside. Thus, oxygen moves inside, ठीक है, due to the difference in the concentration. अब diffusion is obviously faster in gases than in liquids and solids. क्यों? क्योंकि gases की kinetic energy ज़्यादा होती है, ठीक है. It plays an important role in gaseous exchange between the cell and also between the cell and its external environment. और उसके example तो अभी हमने पढ़ भी लिए. Carbon dioxide and oxygen का transportation कैसे होता है, with the process of diffusion. ठीक है. सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन याद करना, दो एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. एंड ये याद करना कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, गैसियस स्टेट में होता है. क्यों होता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस भी वही है, ऑस्मोसिस में भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही जाएगी. एक्चुअली ये तो एक लॉ है, एनी सब्सटेंस विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है. और ये हमने प्रैक्टिकली देखा भी है. बट अंतर क्या होता है ना, ऑस्मोसिस विल ओनली एंड ओनली हैपन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. लाइक डिफ्यूजन में ऐसा नहीं था, ठीक है. लाइक अभी मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया, हम इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस भी देखते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ डिफ्यूजन. सो उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, एक मीडियम होना चाहिए, उसमें वो लोग कर लेंगे डिफ्यूजन. बट ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू अ सेलेक्टिवली permeable membrane only. Okay, and diffusion can be of anything, it can be of a solid, liquid and gas, but in osmosis we particularly talk about the water molecule. So in osmosis we are talking about a water molecule which takes place through a selectively permeable membrane. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलो या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलो, इन दोनों का मतलब यही है कि कुछ ही चीजों को जाने देता है, ठीक है. So it's a passage of water from a region of high water concentration to a low water concentration through only, actually this word only is very important, only through a semi permeable membrane. तो ये जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, अब ये यहाँ एग्जाम्पल आ गया, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब एग्जाम्पल है. तो ऑस्मोसिस कौन करता है, जो एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं ना यूनिसेलुलर, दे गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस ओनली. वो पानी कैसे लेते हैं, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही लेते हैं. So unicellular freshwater organism and the most plant cell tend to gain water through the osmosis. ठीक है. Now absorption of water by plant root is also an example of osmosis. The process of osmosis can be seen in a cell placed in a solution of different concentration. अब इसमें क्या मतलब है, साइंटिस्ट ने ना ऑस्मोसिस के प्रोसेस को ऑब्जर्व किया. कैसे, उन्होंने 3 कंटेनर लिए और तीनों में अलग 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 टाइप की सोल्यूशन डाल दिए. लाइक किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा तो किसी की कंसंट्रेशन कम, ठीक है. और उनको नाम रख दिया हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. और उसमें देखा कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है.
तो हम डायरेक्टली इस टेबल पे नहीं जाएंगे, मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया है, पहले मैं वो समझाऊंगी। वो अगर आप समझ गए तो फिर वो टेबल बहुत ही ईजी है और कंफ्यूजन भी आपका सारा चला जाएगा। ठीक है, तो पहले तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज नथिंग बट एक मिक्सचरण होता है। ठीक है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अपन नमक पानी बनाते हैं, तो उसमें जो पानी होता है उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो नमक हम डालते हैं उसे हम बोलेंगे सल्यूट। तो जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन इट्स सल्यूट। तो अगर पानी में सल्यूट, या फिर पानी नहीं कुछ भी, अगर सॉल्वेंट में सल्यूट ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा, अगर सल्यूट कम तो कंसंट्रेशन कम। ठीक है, तो अब इस ऑस्मोसिस 3 टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अब हाइपर से क्या मतलब है? हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, अपन ऐसे नहीं बोलते ज्यादा हाइपर मत हो। हाइपर मतलब कि ज्यादा भी कूद मत, ज्यादा भी गुस्सा मत कर, ऐसे। तो हाइपर मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन, आइसो मतलब इक्वल कंसंट्रेशन, मतलब कि सल्यूट की कंसंट्रेशन एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर हो, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। एंड हाइपोटोनिक क्या हो जाएगा? जिसमें कंसंट्रेशन कम हो। ठीक है, तो ये 3 ऑस्मोसिस के टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कम मतलब सल्यूट की कंसंट्रेशन कम, अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंड सिमिलरली दीज ऑल। अब अपन ने क्या किया? अपन ने एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन लिया। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब कि पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। एक आइसोटोनिक सोल्यूशन लिया, इसमें मतलब कि बराबर है, पानी और सॉल्यूट दोनों ही बराबर है। और एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन लिया, जो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है तो पानी कम है, तो इसमें पानी क्या है? कम है। अब इनमें तुमने सेल डाल दिया, अब क्या हुआ? अब यहाँ पे पानी ज्यादा है तो वो सेल के अंदर जा रहा है। अब क्योंकि वो सेल के अंदर जा रहा है तो सेल क्या हो रहा है? स्वेल हो रहा है। और क्योंकि ये पानी अंदर जा रहा है तो पानी अंदर जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। अगर पानी बाहर जा रहा है, बाहर क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पानी कम है। ठीक है, हाइपरटोनिक में पानी कम होता है तो पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। और क्योंकि पानी बाहर जा रहा है तो सेल क्या होगा? श्रिंक होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सो ये बस आपको इतना सा ये पेज समझना है। अगर आपको ये पूरा पेज समझ आ गया तो ये बहुत ईजी है। सो आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू। हाइपोटोनिक, सल्यूट की कंसंट्रेशन कम, सॉल्वेंट की ज्यादा होती है, तो सेल के अंदर पानी जाता है, इसकी वजह से सेल स्वेल कर जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। आइसोटोनिक में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो पानी आया भी गया भी लेकिन सेल को कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। दूसरा हो गया हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब कि सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्वेंट की कम। सॉल्वेंट की कम है तो सेल से पानी बाहर निकलेगा, सेल से पानी बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब कि एक्सो ऑस्मोसिस। और क्योंकि सेल में से पानी बाहर निकल रहा है तो सेल क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी। और यही इस टेबल में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लो। हाइपोटोनिक मतलब कि वाटर कंसंट्रेशन कम है, सेल क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा, एंडोस्मोसिस। आइसोटोनिक मतलब कि सेल का साइज सेम रहेगा। हाइपरटोनिक मतलब कि जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक क्यों करेगा? क्योंकि बाहर पानी निकलेगा। बाहर पानी क्यों निकलेगा? क्योंकि बाहर पानी कम है, बाहर पानी कम है। ठीक है, so that's all for today. I hope you learned a lot from this video, and thank you for watching.